welcome back to my channel. Let's talk about the first chapter of inorganic chemistry. That is periodic table. It is a basic chapter to build up any concept on it. क्योंकि coordination compounds में भी we will need this chapter. P block elements, D block elements, F block elements, सारे chapters में we will need the periodic table basics. So modern periodic table का जो law है that is based on the Moseley law. Modern periodic table is based on the Moseley law, and Moseley law gives the that periodic repetition of the properties is based on the function of atomic number. उसके पहले जितने भी लॉज थे दे से द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो फंक्शन है एटॉमिक मास का. Moseley law में z factor is directly proportional to under root of frequency. We can write this as under root frequency is equal to a z minus b. Just remember this statement. Can be asked in statement based questions, and no derivation or formula is required for it. Now S और P ब्लॉक जो होते हैं उनको साथ में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन द नॉर्मल स्टेट और द ऑक्सीडेशन स्टेट और द एक्साइटेड स्टेट्स. लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी होते हैं they do not have incompletely filled d orbitals, so these are not transition elements. Rest all d block elements are the transition elements. Talking about S block का general configuration, it is NS1 or 2. P block का general configuration NS2 NP 1 to 6. D block का general configuration n-1 D 1 to 10 and NS 0 to 2. F block का general configuration n-2 F 1 to 14 n-1 D 0 to 1 and NS 2. So F block में दो blocks consider करते हैं 4F series and the 5F series. 4F series और 5F series में कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं. 4F series is called the lanthanoid series and 5F series is called the actinoid series. Lanthanoid series में atomic number 58 to 71 एलिमेंट्स आते हैं from the cerium to lutetium, and 5F series में 90 to 103 एलिमेंट्स आते हैं that are actinoids. 90 is 89 is lanthanoid and 89 is actinium and 57 is lanthanum. यहाँ पे 58 से स्टार्ट होते हैं lanthanoids and actinoids 90 से स्टार्ट होते हैं. lanthanoids are from thorium to lawrencium. Moving on to diagonal relationship. Diagonal relationship क्या होता है? जो डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट है कुछ उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो होती है ड्यू टू द सिमिलर आयनिक साइज. द सिमिलर आयनिक साइज होता है और वी कैन से द सेम आयनिक पोटेंशियल होता है या फिर सेम चार्ज बाय साइज रेशियो. Diagonal relationship में we can talk about beryllium and aluminium are in diagonal relationship. Lithium and magnesium are in diagonal relationship. This is basically between the second and the third period elements. So talking about covalent radius. Covalent radius को निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे क्वेश्चन इस पे नहीं पूछे जाते हैं बट यू शुड नो द फॉर्मूला. तो D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 काई ऑफ A माइनस काई ऑफ B. Chi of A is
electronegativity of A, and chi of B is electronegativity of B. So van der Waals radius is the largest radius, or it is measured in the noble gases, or we can say that the inert gases or the 18 group elements. So अगर हम रेडियस में बात करें तो सबसे बड़ी होती है वैन डर वाल्स रेडियस, देन वी गेट कोवेलेंट रेडियस. नो, कोवेलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस के अलावा भी एक रेडियस होती है, दैट इज़ मेटेलिक रेडियस. सो मेटल्स का जो रेडियस है दैट इज़ ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस, बिकॉज कोवेलेंट रेडियस में जो है एटम्स जो है ओवरलैप करते हैं, दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन द सेंटर्स. और मेटेलिक रेडियस में दे डू नॉट ओवरलैप, दे जस्ट टच ईच अदर. सो टॉकिंग अबाउट साइज, एटॉमिक साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के. वी विल टॉक अबाउट जेड इफेक्टिव फर्दर. So Z effective is the total nuclear charge on the electrons. So it is the effective force of attraction. Z effective अगर हम चेक करना चाहें, that is atomic number minus sigma. Sigma is the screening effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा S शील्डिंग करता है, then P, then D, and then F orbitals. F orbitals are poorly screening, and then the D orbitals are poorly screening, due to which we will see the lanthanide contractions and the actinoid contractions and D block contractions. So along the period अगर हम बात करें, along the period ZEFF इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज साइज डिक्रीज़ होता है अलॉन्ग द पीरियड, एंड अलॉन्ग द ग्रुप में साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो जेड इफेक्टिव जो है डिक्रीज़ हो जाएगा अलॉन्ग द ग्रुप, और इट में रिमेन सेम. ZEFF is also proportional to the positive charge and inversely proportional to negative charge. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी आयन पे, ZEFF उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना कम ZEFF होगा. लेट्स टॉक अबाउट रेडियस. तो ZEFF जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ZEFF होगा, उतनी कम साइज़ होगी. सो जो साइज़ है दैट इज़ कैटायन का साइज़ सबसे कम होगा, बिकॉज इट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, देन रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम और रेडियस ऑफ अनायन. वी कैन चेक इट बाय ZEFF. और इजी टू रिमेंबर ट्रिक क्या है कैटायन में जो है, बिकॉज लाइक टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम कैटायन Al+3. अब +3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो शेल्स कम हो जाएंगे. न्यूट्रल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हैं, तो वो तो कैटायन से तो ज़्यादा ही होगा ना. एंड अनायंस के केस में क्या होता है, अनायंस के केस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया सल्फर को. 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए तो शेल्स भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, या जो रिपल्शन की वजह से रेडियस जो है इंक्रीज हो जाएगा. इन केस ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स, वैसे तो वी विल टॉक अबाउट इट इन द P ब्लॉक एलिमेंट्स, बट 13 ग्रुप एलिमेंट्स में जो है D ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन सीन देखा जाता है. व्हाट इज़ D ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन? वैसे तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ जो है इंक्रीज होना चाहिए, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दिस शुड बी द ऑर्डर. बट यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो गैलियम से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू द D ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. D ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, गैलियम का साइज़ कम हो जाता है. और इसी के केस में अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बिकॉज साइज़ इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप. सो आयनाइजेशन का ऑर्डर होना चाहिए, बट ये नहीं होता है
बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। डी और एफ ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर है दैट कम्स आउट टू बी जो थैलियम है जिसका सबसे कम होना चाहिए था दैट मूव्स टू द सेकेंड पोजीशन एंड बाकी जो सारे हैं दे आर इन द सेम ऑर्डर। और जो गैलियम और एल्यूमिनियम के बीच का जो रिलेशन था साइज़ के केस में वही रिलेशन हम यहाँ भी देखने को मिलता है। बिकॉज गैलियम का साइज़ कम है एल्यूमिनियम से तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। बिकॉज जिसका साइज़ ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। और बस यहाँ पे एक्सेप्शन हमें याद रखना है, थैलियम आगे आ जाता है। बाकी हमें अगर साइज़ का रिलेशन याद है तो वी कैन राइट द रिलेशन फॉर आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो। So moving next, now we will talk about ionization energy. So ionization energy is always endothermic. Ionization energy is always endothermic and जो successive ionization energies होती है those are always increasing because हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ व्हाट रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। तो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करें तो साइज़ जो है अलॉन्ग द पीरियड जो है साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ कम हो रहा है तो शेल्स जो है पास में आ रहे हैं तो वहाँ पे जो शील्डिंग इफेक्ट होता है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन पे तो उसको रिमूव करने में डिफ़िकल्टी होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ग्रुप में बात करें तो साइज़ इंक्रीज़ होता है राउंड द ग्रुप जाने पे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि Z इफेक्टिव जो है ऑलमोस्ट सेम होता है या डिक्रीज़ होता है। Let's talk about ionization energy of second period elements. So basically trend should be this, but ये नहीं होता है। Instead of this, यहाँ पे क्या होता है बेरिलियम और बोरोन के बीच में हमें डिस्टर्बेंस दिखता है एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में डिस्टर्बेंस दिखता है बिकॉज जो बेरिलियम है उसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो दैट विल अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। उसकी वजह से क्या होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और नाइट्रोजन में ज़्यादा क्यों हो जाता है ऑक्सीजन से बिकॉज नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल आर वेरी स्टेबल। और हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में बात करें तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2p3 ऑर्बिटल और यहाँ पे हम 2s2 की बात कर रहे हैं। सो फाइनल ऑर्डर कैसे आ जाएगा लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियॉन। नोबल गैसेस का सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है बिकॉज दे आर अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उनमें तो वो सबसे स्टेबल है। अब उनमें से इलेक्ट्रॉन खींचना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव और Z इफेक्टिव भी आयनाइजेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करें अलॉन्ग द पीरियड ZEFF इंक्रीज़ हो रहा था एंड साइज़ डिक्रीज़ हो रहा था। साइज़ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। डेल्टा HEG क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। और अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम बात करें तो ZEFF डिक्रीज़ होता है या फिर रिमेन कांस्टेंट और क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता है तो डेल्टा HEG कम लगेगा।
तो हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू इन मेजॉरिटी केसेस डेल्टा HEG1 इज़ नेगेटिव। मेजॉरिटी केसेस में डेल्टा HEG1 जो है नेगेटिव होता है, मतलब एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, हमें एनर्जी बल्कि रिलीज़ होती है टू गिवन इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, नोबल नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, इनके केस में डेल्टा HEG1 भी पॉजिटिव आता है बिकॉज दे आर अचीविंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। और इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड भी करेंगे तो इट विल कॉज द डिस्टर्बेंस, और उसकी वजह से एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बिकॉज दे आर हैविंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉक अबाउट सक्सेसिव डेल्टा HEG। तो जैसे हमने पढ़ा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, तो सक्सेसिव डेल्टा HEG जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। इट इज़ ओनली नेगेटिव और एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ डेल्टा HEG1, पर वो भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव होती है। और उसके बाद जितने भी डेल्टा HEG होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होंगे, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक। ग्रुप 16 में अगर हम ट्रेंड की बात करें तो दैट इज़ सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लीस्ट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज़। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ होता है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। इस ट्रेंड में सिर्फ यही अबनॉर्मेलिटी है, बाकी वी विल फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, क्योंकि हमने पढ़ा था डेल्टा HEG जो है डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप जाने पे, डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज़। ग्रुप 17 में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। यहाँ पे तो सिमिलर ट्रेंड दिख रहा है। एबनॉर्मलिटी इज़ बिटवीन द क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन में एबनॉर्मलिटी क्यों दिखी? क्योंकि जो क्लोरीन है वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हमेशा ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज़। क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से बड़ा है और ड्यू टू देयर एफिनिटी देज आर हैलोजेंस, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल करके दे कैन अचीव द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो क्लोरीन इज़ मोर electron gain enthalpy, having the more electron gain enthalpy than the fluorine. Now let's talk about some electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें दैट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ZeFF। अभी हमने ZeFF से प्रोपोर्शनल 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली है, और ZeFF को इन्वर्सली, पहले हमने ZeFF को देखा दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है तो ZeFF डिक्रीज़ होता है, रिमेन कांस्टेंट। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी देखी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी। ये तीनों जो है ZeFF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अलॉन्ग अ पीरियड ZeFF इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी पीरियड में। और हमें भी पता है कि हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मुलिकन्स स्केल और पॉलेंस स्केल, ये 2 स्केल हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेज़र करते हैं। सो IM इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पॉलिंग स्केल के केस में P इज इक्वल्स टू मोलिकन स्केल में जो वैल्यू आई थी अपॉन 2.8, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको किलो जूल पर मोल में लिखना है तो IE प्लस EA अपॉन 540 किलो जूल पर मोल। और
इसको किलो कैलोरी के केस में लिखना है तो IE + EF अपॉन 130 किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एनर्जी रिलीज हो रही है या कंज्यूम हो रही है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सिर्फ प्रॉपर्टी है कि कौन इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपने पास, विच कैन अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अलोंग अ पीरियड अगर हम जाएँ तो हम देखते हैं we are moving towards the non-metallic character, and due to the non-metallic character, non-metallic oxides होते हैं that are acidic in nature, non-metals are acidic in nature, so acidic nature increase होता है। और अगर हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में metallic character increases और due to which basic character increases। Now let's talk about amphoteric oxides. This is an important topic to talk about. Because directly question आ सकता है, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड आता है, तो यू कैन बी ऑल्सो आस्क कि इन चारों में से कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा नहीं है। तो बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, we also say it as alumina, gallium oxide, tin oxide, SnO2, PbO, PbO2, ZnO। ये सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड के 3-4-5 एग्जाम्पल होते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स और एक +4 आपको ईजिली मिल जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। So these are all the neutral oxides and these are the amphoteric oxides. अगर हम metals की बात करें तो metals basically form the basic oxides, और higher oxidation states में they form the acidic oxides like Mn2O7, ठीक है। और नॉन मेटल्स they mostly form the acidic oxides. So this was all about the periodic table, our first chapter of inorganic chemistry. I hope you get this chapter. We have completed this chapter in 24 minutes only. और इसका बेसिकली हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिवीजन कर लिया है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ट्रेंड्स एंड सम फार्मूलाज। वैसे इनसे क्वेश्चंस आता नहीं है, बट मे बी फार्मूला कैन बी आस्क्ड और जस्ट सिंपल वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना हो सकता है। सो रिमेंबर द ट्रेंड्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट। और जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं वी विल बी डूइंग इन द रिस्पेक्टिव chapters like P block or D block and F block elements. So this was all about periodic table. Thank you for listening me out. Stay tuned for updates. Thank you.